affecting freedom of expression and access to expression and access to information. Environment was discovered 19. I think that this is repetition. So it ends at the previous page with the prayer. कंप्लेंट को फिर देखा क्या ये नहीं देखा order pass किया था उसने this is इसके बाद ये कहा था कि क्योंकि ये अदालती तारीख में ये जुरिस्डिक्शन है तो जुरिस्डिक्शन है तो आगे तारीख में क्या हुआ था वन ऑफ द लिमिट जो है वन ऑफ द लिमिट जो है कि आप मिस्टर कि आप हटे यहाँ से आप हटे यहाँ से हिस्ट्री फैसला फिर उस पर हमने कहा था कि मतलब हमने वो साइड पे हो गए थे इसमें ऑर्डर तो है किसका ऑर्डर है किसका ऑर्डर है उन्होंने डिटेल्स मांगी सारी 13/9/2021 का इसमें पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर जनरल इज प्रेजेंट इन कोर्ट इन कोर्ट SMC5 तो कलेक्टिवली है Let a copy of the report be handed over to the learner and handed over to the learner and who should go through the same and assist us in the matter on the next day the matter on the next day of the weather on account of any overlap in the issue the petitions pending for the petitions pending for the High Court likely to arise in these proceedings or for any other reason it would be necessary or to pass any orders in relation to the matters pending before the High Court. On our query the Director Investigation Agency who has present in court the past 4 years 27 cases have been reported to FIA out of which 4 have been converted into leading in the lodging of FIRs and other remaining complaints came some of which are still being processed. Directed the FIA to file a comprehensive report providing the following details FIRs to how the FIRs have been lodged and doing so proceedings have been undertaken and if any accused have been arrested matters have gone to court ये इनकी इस्तेदाद थी इनकी इस्तेदाद मुझे समझ आया जहाँ तक मुझे समझ आया ये तो पूछने के केसेस रजिस्टर्ड केसेस इनका कहना था कि जी धमकी देके गोली मार के हम पर तशद्दुद किया जा रहा है मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ ये कंप्लेंट से उसमें ये तो उल्टा एक बात अब बुनियादी बातें से शुरू करते पढ़िए जरा Every citizen have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement to an offence. या तो सरकार कहती कि इन्होंने इस्तदा की थी एक्सेप्शंस में आ रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है ये कहना कि जी FIA दिखाएं कि क्या पे केसेस हैं पता नहीं क्या दिखाया उन्होंने मतलब या तो बुनियादी हकूक़ को जिंदा करें या कागजी कार्रवाई में रखते हैं बस किताब में खुद सजा करके तो ये केस भी दफन हो गया और इसके साथ बुनियादी हकूक़ भी दफन हो गए
مطلب سوری، یہ میں تو اپنے بھی انسٹیٹیوشن پہ بات کروں گا کہ اتنا اہم کیس یا تو جھوٹا کیس ہے فوراً فارغ کریں، فائن لگا دیں کمپلیننٹ پہ، یا اگر ہے سچا تو پھر آگے بڑھیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میرا خیال کیسے یہ کیس شفٹ ہو گیا تو اس نے اور بھی عدالت منگا لی جیسے جنپور. سو یہ کیس جو ہے یہ کیسے چلا گیا تھا؟ کیس تو پھر بھی چلنا تو چاہیے نا. وہ چیف جسٹس صاحب نے 3 ممبر بینچ بنا دی، چلے کیس پھر چلا. لگتا کیوں نہیں ہے کیس؟ یہ دیکھیے نا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ ہم تو تیار ہیں غلطی تسلیم کرنا. یہاں تو بھائی معافی مانگنے کی بات دور کی، تسلیم تو کوئی کر لینا اپنی غلطیاں. یہاں تو موقع بس دیکھا جاتا ہے، یہ موقع پہ میرا فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. سر رجسٹرار آفس سے بتا سکتے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں نا، ہم اس میں گناہ گار ہیں کہ کیس نہیں لگا. کیوں نہ ہم سچ بولیں؟ میں سب غلطیاں اپنے سر پہ اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا. مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھ پہ انگلی اٹھائیے، یا اگر آپ نے انگلی مجھ پہ نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی. مطلب آپ تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے، یہ اہم، اب پتہ نہیں کس کو مارا گیا، کس کو مارا گیا ہوا اس کا گولی کس کو ماری گئی تھی؟ ابصار عالم صاحب کو. اور اسدود کو جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا تھا. متی اللہ جان کے ٹیمپ ہو چکے ہوئے تھے، جبکہ ان کا کیس کا ٹیمپ کا ایک لگا ہوا تھا. اسے ایک دن پہلے متی اللہ جان کو ایبڈکٹ کر دیا گیا تھا. ہم اس وقت کے چیف جسٹس کے پاس درخواست لینے کے، ان سے کوئی ریلیف لینے کے لیے ہم نے، جیسے کل پرسوں آپ سے ملاقات کی پریس ایسوسی ایشن میں، ہم نے بھی چاہا ان سے کہ جسٹس گلزار صاحب اب کیا کریں، نام لینا پڑتا ہے سابق چیف جسٹس کا، تو ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی. بس آپ سابق ہی کہہ لیں گے، موجودہ پہ آپ تنقید کریں، سابق پہ تنقید نہ کریں. میرے لیے تو دونوں آنریبل ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ تھا، متی اللہ کا لگا ہوا تھا. ایک دن پہلے وہ کڈنیپ ہو گئے. اس کے بعد اسدود کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پھر عمران شفقت، عامر میر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا مسٹیریسلی. تو کیونکہ ہماری پہلے نہیں سنی تو پھر ہم وہ عدالت کھلی تھی، اس کے سامنے چلے گئے جہاں پہ یہ SMC 4 جو ہے یہ آیا. اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ ریکارڈ میں ہوا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. اس کے بعد پھر یہ کیس نہیں لگا. اور کیوں نہیں لگا اس میں اب اس کے بعد تو بہت سارا وقت گزر گیا کہ ان تو لا بھی بدل گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا. وہ اختیارات چھین لیے گئے چیف جسٹس سے اور وہ 3 ممبر کمیٹی بن گئی. اب تو خیر وہ ایک طرح سے وہ لا ہی چینج ہو گیا. فل کورٹ نے اس کا فیصلہ کر لیا، لا صحیح ہے. تو اب وہ جو پہلا طریقہ کار تو وہ تو اس کی خیر کتابوں میں رہے گا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر یہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک شکایت آتی ہے اٹارنی جنرل، تو وہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ اس وقت کون تھے اٹارنی جنرل؟ آپ تھے. I want to add here, my lord. جی آپ کون تھے اٹارنی جنرل؟ I think Mr. Khalid Javed Khan was the attorney general, my lord. یہ ان کی گریونسز جو بھی تھیں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جو بھی ان کی شکایات تھیں. I want to add here something, my lord. آئیں گے، سنیں گے. انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے کہ جی کس طرح یہ واقعہ ہوا، کس طرح لے گئے، کس طرح چھوڑا، کس طرح کیا کیا. My lord, the matter did not proceed. اگر مجھے دیکھیں، دنیا میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی ماضی کو دیکھتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تسلیم کرتی ہیں. یقیناً جو شخص اس وقت موجود ہے انہوں نے تو نہیں کی ہوتی، مگر پھر بھی کم سے کم کچھ تو ہوتا ہے. یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بس چھوڑو، آگے بڑھو، مٹی پاؤ بس. یہ ایک، اور اسی سے تقویت ملتی ہے دوسروں کو. خیال میں اس کے بعد جو ہے بینچ کے آرڈر کے بعد ایف آئی اے نے صرف رپورٹ فائل کی ہے. سنیے، صرف رپورٹ فائل کی ہے کہ جی اس وقت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے، سب معاملات ختم ہو گئے. مگر آپ کی جو ارلیئر گریونس تھی کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اس کی کوئی رسپانسبلٹی وہ نہیں ریڈریس ہوا، کون اکاؤنٹیبل ہے اس کے بارے میں وہ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ یہ ہے میرے پاس، یہاں پہ میں نے دیکھی کہ ساری انکوائریاں ختم ہو گئی ہیں، اس وقت کچھ بھی پینڈنگ نہیں ہے. As far as اس کے بعد DG FIA جو concerned, Islamabad police did register.
अगर आप बात but not the FIR. वो सिर्फ ये मालूमात कर रहे थे कि सहाफियों के खिलाफ कितने केसेस इंदराज हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ वो तो फिर भी निस्बतन बेहतर तरीका होता है, मगर ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं बगैर केस के उठा लिया, मार दिया, धक्का दे दिया, वो तो अलग बात है ना। कम से कम झूठा भी केस करें तो आप बरी तो हो सकते हैं उसमें ना, नतीजा तो कोई निकल सकता है, कुछ तो पता चल सकता है। मगर ये जो तशद्दुद जो हुआ है, इनसे पूछने असदूर से आपको पता चला कि कौन लोग थे? Just one thing before he proceeds. Islamabad police had furnished a report and FIR was registered in Mr. Asattur's case. What is the outcome of the FIR? My lord, कितने लोग बेल पे हैं, कौन अरेस्ट हुआ? अननोन पर्सन्स होंगे। जी हाँ, unknown persons. ये मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं ना, ये इनसे ही पूछ लेते हैं, नहीं की ज़बानी। कोई पकड़ा गया उस केस में? नहीं माय लॉर्ड, कोई नहीं उसमें गिरफ्तारी हुई थी। और आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं? मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ उनकी शक्लें। एक चीज बताइए, पुलिस वाले आपके पास आए, उनके पास एक होता है आर्टिस्ट, स्केच बनाते हैं कि भाई ये कैसा है, फिर वो अखबार में देते हैं कि इसकी हमें तलाश है, ऐसी कोई बात हुई? पुलिस वालों ने स्केच जरूर बनाया था, लेकिन कोई इश्तिहार नहीं दिया था। फिंगरप्रिंट्स भी थे उनके, लेकिन उनका नादरा ने कहा नहीं शनाख्त हो रहा। इसके अलावा वो मेरे अपार्टमेंट पर अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जियो फेंसिंग नहीं की थी उस केस की। और मैंने जो FIR दी थी उसमें क्योंकि जो हमलावर थे उन्होंने खुद अपना तारुफ करवाया था कि उनका ताल्लुक ISI से है, लेकिन आज तक जुबानी कलामी भी ISI वालों के किसी का बुला के बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। वो तरदीदी बयान ही आके रिकॉर्ड करवा देते तो शायद बेहतर होता। लेकिन तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या निकला, कुछ आपको पता है? शायद मे बी इट्स नॉट फेयर टू आस्क यू, आप तो आपके अटॉर्नी जनरल नहीं थे, आपको कुछ पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या उन्होंने मालूमात की? My lord, if my lords may kindly turn to see. भाई अगर एक शख्स कह रहा है मैं फलां इदारे से हूँ, तो कम से कम हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है सच बोल रहा हो, कम से कम मालूमात तो कर सकते हैं ना कि ये शख्स आपके यहाँ काम करता है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसके अंगूठे हैं, उनके पास तो रिकॉर्ड होगा अपने हर मुलाजिम का। चालान में क्या लिखा उन्होंने 173 की रिपोर्ट में? My lord, I have, if my lords may kindly turn to CMA 12661. This is CMA filed by Inspector General Police Islamabad. 12661. मुख्तसरन बताइए। 12661 of 2021. 2023. ये जब तक आप किसी को काउंटेबल नहीं करेंगे, ये आज भी होगा और कल भी होगा, आप लिख लीजिए, ठीक है? मगर हम सुप्रीम कोर्ट पे जब तक मामले आते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है ना। 12661. इसमें देखो भाई, इसमें बंडल में निकालो। 2023. ये सफेद वाली जी। Page 6 is where page 6 जी। So this is FIR 164 in the case of Mr. Asad Ali Toor, and at page 7. जी। FIR की कॉपी लगी हुई है इसमें? Page 7 sir. 7 में तो कोई डब्बे बनाए हुए हैं, MLD से क्या ताल्लुक? Sorry, I think it's CMA number 114. 114 sir. ये में तो कुछ और है। 114 sir. अच्छा, इसमें कौन सा नंबर, सफा नंबर? Page 6. पेजिंग ही नहीं हुई है इसमें। 114 of 2023। खालिद जावेद खान तो मौजूद नहीं है कोर्ट में। So page 6 114 इसका सिर्फ बता दें क्या उनको कुछ पता चला या नहीं पता चला? My lord, no sir. CCTV में भी नजर आया था। आप ये बताइए, आप इसका क्या नतीजा निकला? इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया या क्या निकला? इसका एक्टिवली परस्यू है, हॉट केस है, क्या चीज है? अगर आपको अभी नहीं पता, आप ये चीजें नोट कीजिए अटॉर्नी जनरल। My lord. और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसमें दी जाएगी। I want to add something. जी फरमाइए।
गुज़िश्ता दिनों जो हमारे प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं, इनकी तरफ से आप एक चीज तो कर लेना, ये मसला तो हल करें ना आपका। मैं इसी पर आऊंगा। नहीं, मैं इसी पर आने लगा हूं। नहीं, आप एक मिनट, ये अगर आपको पता है किसने किया, हमें नाम बता दें, हम इनको कहेंगे उसकी तफ्तीश कर लें। माय लॉर्ड, मैं इसी पर आने लगा हूँ। आ जाइए। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि जो इनकी प्रेस रिलीज थी, आई स्टैंड बाय इट, लेकिन ये जो पिटीशन थी, आई फेल्ट आई एम ट्रैप्ड टू साइन दिस पिटीशन, सो आई एम जस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस पिटीशन। आपने क्या झूठा एलिगेशन लगाया है? आई एम नॉट सेइंग झूठा। नहीं, हम कह रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी मर्जी नहीं है कि आप टहलते हुए आए और कहें कि मैं अब जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। नहीं, सॉरी, ये बात अगर या तो बोलिए झूठा एलिगेशन था, अगर सच्चा है हम आपके बुनियादी हकूक आपको दिला करके छोड़ेंगे। असदुर साहब जरा सुन लीजिए, अगर आप पे प्रेशर है इसको विड्रॉ करने का, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो वे, आई एम नॉट। अच्छा, हम करेंगे ना, आप हमारे पास ले आए ना एक चीज, हम देखेंगे उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशन्ड इन माय एफआईआर। हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है? आप नहीं करना चाहें, आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। असद साहब, इसमें कोई फर्क है? जो दोनों आप एक से विड्रॉ करते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरा है ही नहीं ना उनका, वो तो एक ही पे आपने साइन नहीं किया कह रहे हैं ना, एक पे यही बात है। साइन इज, आई एम लाइक दैट टाइम कुछ और कहानी थी जो साइन हो गया था। बता दें वो भी कहानी। चलिए, आप एक्सप्लेन कर शहजाद साहब, जरा आप भी आ जाइए। You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. But I am always ready. Ji, Ready to. now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? But Would you like to represent Mr. Asad Ali Tur? But if he wants No, if he no, we are saying Well, he's made it clear. He says I want to withdraw it. Well, But we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that, but it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. Ab 6 dafa mere ghar aur aayenge. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, that incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made up story, we close the case. That's one thing. But they have taken, they accept that incident took place. Then it should be proceeded. So what I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Sahab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ hai whatever. So why is he withdrawing? What I've heard, he says कि उस पिटीशन पे मेरी सिग्नेचर नहीं थी, He has been trapped. हाय मैं हमने आप ये उनको कह रहे हैं ना, आप सुना ही क्लैरिटी कर दीजिए आके, एक मिनट रुकिए जरा। Why he was क्लैरिटी trapped तो and आ why he जाए is ना, वो बोलना withdrawing? क्या चाह रहे हैं? उसकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन नहीं थी, आपकी कोई इंडिविजुअल पिटीशन है असदुर? लेट मी क्लियर माय लॉर्डशिप, आप उसको क्लियर कर दीजिए, असल में थोड़ा कम्युनिकेशन में मसला हुआ। यस प्लीज, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, मैं पहले it's इस all तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सका। माय लॉर्डशिप, जब ये पिटीशन हुई थी, मैं अंडर इम्प्रेशन था कि जो मेरे मेंटोर हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो भी इसके सिग्नेटरी हैं, लेकिन जब, और दूसरी बात मैंने इसलिए इस पर साइन कर दिए थे, आई हैवंट क्वेश्चनड इट। दूसरी बात, मेरा बिल्कुल ये कंसेंट नहीं था कि ये पिटीशन कोर्ट रूम में लाई जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता था। ये आप देखें, हम आपसे सिर्फ सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, आपके साथ जो हुआ वो सही है, आपने सच्चाई बात लिखी, गलत? I stand by. बस इतनी सी बात, बस इतनी। अब आप
तरीक़ेकार कि ये इधर लगे उधर लगे, ये तो आपका काम नहीं है ना, ये तो कोर्ट में ले लिया ना, वो तो आप सो मोटो ही हो रहा है ना, अब वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, वो ये नहीं कह रहे, खड़े थे वहाँ। नहीं वो ये आज भी खड़े हुए हैं आपके साथ, वो इशू नहीं है उनका। वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे सही है। अब वो किसके पास लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, मैं खुद मुतमईन नहीं था, जी हाँ। तो मैं इसमें क्या आपको बड़ी बात दरअसल करूं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ट्रैप हो गया था हाँ, मैं साइन वही करते हुए, तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली। क्यूरियोसिटी क्या? यही है कि ट्रैप कैसे हो गए। मैं हमारा भी सवाल यही है, वही बता सकते हैं। मैं या बाहर पूछ लीजिएगा उनसे, हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उनके उस्ताद ने साइन कर दिया था, तो ये समझे उन्होंने भी कर दिया। ये बात journalist protection is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That's, we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter went much more than that. It was not just censorship, it was intimidation बना दी। और रिसेंटली जो भी क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे अभी रिसेंट पे अलग बात करते हैं, फिर ये आपके सदर इनसे सुन लेंगे क्या करते हैं। जी हाँ। ये आप कॉम्प्रिहेंसिव हमें इस पे रिपोर्ट दीजिएगा, और ये आप जाएंगे और अगर you will go to any agency including the ISI, और अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिला आप उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। मेरे ख्याल में वो जो इमरान शफकत और आमिर मीर साहब के साथ जो FIRs थी, उसमें क्या उनका क्या इशू है मुझे नहीं पता। यही इमरान शफकत के साथ क्या हुआ? इमरान शफकत को भी उठा लिया गया था, जिसके अंदर इमरान शफकत जो है उनको भी उस वक्त उठा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके हवाले से कोई क्रिटिसिज्म क्या था, ये उनके साथ हुआ क्या था? जितनी FIR इन लोगों ने लॉन्च की है ना, जो साथियों ने जो जितनी भी FIR लॉन्च हुई है, उनका स्टेटस मालूम कर लेना कि वो 173 की रिपोर्ट के बाद उसमें FIR हुई या नहीं हुई? हुई थी। उस पे फाजिल अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि DG FIA ने कैसे किया, वो एक रिपोर्ट दाखिल हुई थी, मेरा ख्याल है उसको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनका भी नोट करें। तीसरा साफी कौन है? आमिर मीर थे। हामिद या आमिर मीर, नाउ इज मिनिस्टर है प्रोबेबली। हाँ जी हाँ। कम से कम वो तो अपना केस चलवा सकते हैं, वो उनसे भी नहीं चल पा रहा है। जी सर, FIA मेरे ख्याल में एक फेडरल इदारा है, वो शायद सूबे में है। कहाँ मिनिस्टर हैं? पंजाब के अंदर। अच्छा, किस चीज के मिनिस्टर? इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। चलिए हम उनको इन्फॉर्मेशन और दिलवा बता के दीजिए ना, और पेंडिंग FIR कौन सी है, ताकि उनको आप नाम बताएंगे तो फिर उसके बारे में स्टेटस मालूम कर सकते हैं ना। ये उस पे मेंशन है। अच्छा, उनके साथ भी FIR क्या रजिस्टर्ड है? उसके बाद उन FIRs के साथ क्या हुआ, मेरा ख्याल है कि उस वक्त अमजद नजीर और इनका क्या बना? उन्होंने DG FIA से मुलाकात भी की थी, उनको FIA के ऑफिस में बुलाया भी गया था। वहाँ पे हमने तस्वीरें देखी थी कि चाय वाय भी सर्व की गई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये नहीं पता। बहरहाल आमिर मीर साहब के लॉयर जो है वो यहाँ मौजूद हैं। कौन? मैं सर जदून साहब जो है। अच्छा आप हैं, बताइए जदून साहब। सर, इनकी FIR नंबर 128/2021 जो है 7 अगस्त 2021, कौन से ऑफिस में कटी है? ये साइबर क्राइम विंग लाहौर। नहीं, इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में? सर इनके अगेंस्ट। नहीं इनके अगेंस्ट क्यों? मैं ये जो उनके साथ हो उसका हम कह रहे हैं। उसी के FIR से इन्होंने कटवाई थी। He is the complainant. सर इसमें इज नॉट अ कंप्लेंट, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो है सेक्शन 20 के डेफिमेशन। व्हाट वी आर आस्किंग कि जिसमें आप कंप्लेनेंट हैं साफी, उन FIRs का क्या प्रोग्रेस है? वो सर FIR नहीं की उन्होंने, हम तो उन्होंने तो हमें उठा के ले गए थे, हमें मोबाइल छीन लिए थे हमसे। और वो आपके अगेंस्ट है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कि अगेंस्ट क्या क्या है। बट व्हाट एवर दी जर्नलिस्ट आर दी कंप्लेनेंट, उसका क्या स्टेटस है ये पूछ रहे हैं। जर्नलिस्ट की कोई FIR नहीं कटी। नहीं है ना, बताइए ना इन्होंने। नहीं इन्होंने बताया असतूर की FIR भी कटी है, इमरान शफकत भी कटी थी, लेकिन उनके खिलाफ तो FIA ने केस रजिस्टर किए थे, जिस बुनियाद पर उनको अभी हम ये भी बाद में पता लगा। अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जो उन पे बीती साफियों पे वो FIRs की। अब हो सकता है उनके खिलाफ भी FIRs कटी हों, सच्चे झूठे केसेस, वो एक अलग बात है। अगर अभी हम सिर्फ तशद्दुद साफियों पे जो हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, जो अभी हम दूसरे मौजू पे आएंगे, अगर कोई उठाना चाहे उसको भी उठाते हैं। उसमें एक चीज है, बिल्कुल ये तशद्दुद वाला, असद तूर वाला मामला, मतियुल्लाह जान की FIR कटी, मतियुल्लाह जान 0, मतियुल्लाह जान को जो
जी नहीं, उनका एफआईआर का क्या बना? FIR मतियुल्लाह जान की पता नहीं है, लेकिन वो सर वो केस पेंडिंग पड़ा ही सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग पड़ा वो हुआ है। यहाँ हैं, बैठिए सर। पूछ ही लेते हैं उन्हीं से, खुद ही बता देंगे उनके एफआईआर का क्या बना। आपकी एफआईआर का क्या नंबर है जो आपने कटवाई? आपकी एफआईआर का नंबर क्या है? थैंक यू माय लॉर्ड। नंबर एफआईआर का आपका? एक्चुअली जो FIR थी वो मेरे भाई की तरफ से थी और उसका नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर? उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो नहीं, IG पुलिस सब केस तो अलग है ना। जी जी, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है। JIT की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन वो कोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है और उसके ऊपर कोई आप एक्शन। FIR नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए कि FIR नंबर से ये नहीं, पता आपको ये तो ऐसे लोग हैं इनके, उनको 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या एफआईआर नंबर। ये इस्लामाबाद थाने में काटी है। जी, कौन सा थाना था? कोसार। तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। नहीं, ये अपारा का थाना था, G6 का ये इंसिडेंट था, जुलाई 21। थाना कौन सा था? थाना अपारा, पुलिस स्टेशन अपारा। ठीक, उस पे कुछ नहीं हुआ। उस पर कोई उसके बाद एक टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, और हमने वो याद है नहीं, वो JIT किसने बनवाई थी आपकी? JIT किसके ऑर्डर पे बनी थी? JIT सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट बनी के ऑर्डर पे बनी थी, और उसके ऊपर कोई तो प्रोग्रेस इसकी रिपोर्ट नहीं आई JIT। दोबारा वो केस भी नहीं लगा कभी। इमरान साहब, सॉरी, अटॉर्नी जनरल साहब, keep the Supreme Court proceedings separate. We want to know the cases that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf, and even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far 4 names have come before us: Mr. Asad Ali II, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, आप क्या क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर। वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना। केसेस है ना, ये जो सामने FIR देखिए, उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर लें उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केसेस में भी पड़ जाता है। तो कम से कम ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो हैं, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस के ये सारे झूठे केसेस हो तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी तो हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द IG, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल FIA। ये आपको बुलाया था JIT में मतियुल्लाह साहब? And if it requires inquiry to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ठीक है, and they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ठीक है, let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not to but come and occupy a position and serve the present government or the future government or the. So let's see how effective you are, and this we want very soon. My lord, जी फरमाइए। with your permission, जी फरमाइए। there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif, and I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। That's very unfortunate. ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। Exactly. उसका हम ये अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, मालूम करेंगे अगर आप मुझे, मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए। नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं। हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये जरा एक एक लॉजिकली चलते हैं। एक तो ये बात हो गई, आपकी पुरानी बातें हैं
और कोई बात? अच्छा, अटॉर्नी जनरल, My lord. the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work. इस पे आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जी सर, आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। परसों हफ्ते के रोज तकरीबन 47 के करीब एक लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे। कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि 22 जर्नलिस्ट को जो है वो नोटिस सर्व किए गए हैं। अब एक तो हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नाम हमारे पास हैं उनके हवाले से हमने एक रेजोल्यूशन भी पास की है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी नोटिस ले। आज भी कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि अदालत उसको भी। आप कोई सीएमए नहीं फाइल कर सकते एसएमसी के साथ ही जिसमें सारी डिटेल्स हों? अर्जेंटली फाइल कर दीजिए एक आध। एक्चुअली सर ये अच्छा, हम इनको ये बात कर सकते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल, जो जहां तक तनकीद करे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ हूं, एक तो आइन ये वाजे कर दिया है आइन ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। और दूसरी बात, आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किस तरह से? अगर खामियां आप तनकीद के जरिए उजागर नहीं करेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूंगा? तो इसमें तनकीद में इस्लाह का उनसर भी होता है, ठीक है। अब गाली गलौच एक अलग बात है, मगर तनकीद की बात कर रहा हूं। अगर किसी एफआई ने काम किया तनकीद की बिना पे कि आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करें, बेशक करें, ये फैसला गलत है, ये आइन के बरक्स है, ये कानून के बरक्स है, इसमें ये नुक्स हैं, जो मर्जी करें, वो कंटेम्प्ट में भी नहीं आता ना। वो अगर आप कोई किसी आप अगर आपने किसी सहाफी को पकड़ा इसलिए कि उसने तनकीद की है, अगर वो कुछ और करे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या कुछ और, या देखें, अब ये मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे, मगर अब आइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी जुडिशरी में। अगर आप ये वो जरा एक लाइन आ जाती है बीच में, मगर जहां तक तनकीद की बात कर रहे हैं, खूब तनकीद करने दें, इस पे कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा। और अगर इसलिए नोटिस दी गई है तनकीद की बिना पे, तो सहाफियों की मैं बात कर रहा हूं, वो फौरन वापस ली जाए, या किसी ने भी तनकीद की हो, मैं तो कहूँ सहाफी नहीं, आम शहरी भी तनकीद कर सकता है, उसको उतना ही इख्तियार है। सहाफियों को जरूरी नहीं कि वो खास उनके ये हैं, मगर एक आम शहरी भी तनकीद कर सकता है। फैसले पे आर्टिकल लिखे हैं हमारे, लिखे मुझे आर्टिकल 19 में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, हमारे सेंसी, मोरालिटी, Public order. ये चीजें My lord, as far as fair comment or criticism of judgments is concerned, हम आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड करेंगे या आप हुक्म देंगे, कौन सा बेहतर समझते हैं? my lord can record my undertaking. My lord, as far as fair comment or criticism is concerned, फेयर भी निकाल दीजिए, क्रिटिसिज्म भी आपको, अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट मैं आगे भी जाता हूँ, अनफेयर क्रिटिसिज्म भी बट टेम्परेट लैंग्वेज तो होना, जो कंटेम्प्ट लैंग्वेज में वो अगर गाली गलौज पे उतर आए, मैं उसका बताता हूँ, उस पर मुझे उस पर भी असर नहीं है, मगर एक इंस्टीट्यूशन के हेड की मुझे जरा सा फिर देखना होता है कि भाई ये आर्टिकल 19 मेरे लिए नहीं बना, ये अवाम के लिए बना गया है, तो हर चीज में अब तवाज़ुन है। फॉर इंस्टेंस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये भी बता दे कि किसके कहने पे जेआईटी बनाई गई थी और किसके कहने पे ये सारे नोटिस किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मलाइन की जा रही हैं। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन के साथ पढ़े ना, you wanted to say दोनों something? चीजों को मिला के पढ़े आप। नहीं सदर साहब, सदर हाँ सर एक आप कुछ कहने वाले थे? This is exactly what the Supreme Court bar maintains, that criticism on the judgment and a comment on the judgment of this August court is welcome, because that guides everyone. I welcome it. Well, so everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated.
on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. उसकी वजह ये देखिए जी सदर साहब, क्योंकि जो पैमरा है ना उनका कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर दी जो सैटेलाइट टेलीविजन्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स. अब ये जो YouTube का जो चैनल है ना, इसका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय PTA, या ये कोई सेल्फ इम्पोज खुद बना लें. जिस तरह PBA बनी थी जब नए नए चैनल आने शुरू हुए थे, तो एक मौके ये था कि आप सेल्फ इम्पोज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे आपने सारे टीवी चैनल मिलके. इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है, 499, 500, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है. तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी. कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है. सर एक आप जरा आइन जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं. आइन दीजिए. सॉरी, वी टेकन यू बाय सरप्राइज. आइन दीजिए इनको. आर्टिकल 19. Received a notice in the morning. अच्छा, यू आर अ पार्टी? No, my lord. I've just received a notice by this August court that I'm required in this case. I'm here. But Why you given notice? My lord, there's a notice issued by the office. मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ. वो ये कि 5 मिनट पे बेंच के सामने जब ये लगा, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था. तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था. अच्छा, ठीक है. आप जरा आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस पढ़ लें. सर एक बात मैं अगर कोर्ट अलाउ करे सर करना चाहता हूँ. इम्पोर्टेंट है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर हमारा जो मुकदमा है वो सिर्फ जो सहाफ़ी हैं उनकी हद तक है. बाकी कुछ सियासी वर्कर्स भी हैं, कुछ आम इंडिविजुअल्स भी हैं, उनकी हद तक हम केस प्लीड कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम सिर्फ अपने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी हद तक हम जाना चाहते हैं. सर आपने थोड़ी तफरीक कर ली. सर हम आपको भी आपके बुनियादी हकूक दिलवाएंगे, और वो लोग जो हमारे सामने नहीं है, जो शायद जर्नलिस्ट ना भी, उनको भी. जहाँ तक तनकीद की बात है, दिल खोल के तनकीद करें. उसमें हमारी भी शायद इस कुछ पहलू निकालने, जो पहले मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ मैं गलतियाँ ज़रूर करता हूँ और शायद करता जाऊँगा. मेरा वो रुतबा नहीं कि मैं गलती से बालातर हूँ, मगर तनकीदी से इस्लाह होगी. सर लेकिन तनकीद की बात नहीं है सर, कुछ गाली में और खबर में वो तो आपसे कह रहे हैं ना, वो हम तनकीद सही बात है ना. डिसेंसी एंड मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. देखिए डिग्निटी ऑफ मैन भी तो इनवायलेबल है ना आर्टिकल 14 में. इंसान की इज्जत, और फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के आप करेंगे ना सर. किसी की भी आप बेइज्जती करें, कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई, उसको उस तरीके से लिखना, क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल राइट है. डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. सहाफी दोनों चीजें हैं, बैलेंस, दोनों का बैलेंस. जो जर्नलिस्ट है सर, जर्नलिस्ट अगर गलत खबर भी दे, वो किसी ना किसी तरह से वाकयात को, चीजों को नरेट करता है. चलो गलत खबर की लैंग्वेज अगर बुरी नहीं हुई तो सिर्फ गलत खबर है. उसका वो कल देखिए, आप उसकी फिर जिम्मेदारी है. जब उसको पता चला, हो सकता है कि उसने 2-4 लोग उनसे पूछा, उसने खबर लगा दी, फिर उसकी जिम्मेदारी है. ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जी मुझसे खबर गलत लगी थी, तरदीद करना, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है. वो ना करे वो अलग बात है. और ये प्रिंट मीडिया में सालों से होता आ रहा है. वो बात वही आ जाती है. आप प्रिंट मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया, बात सुनिए, प्रिंट मीडिया में भी रहे आप. प्रिंट मीडिया के यहाँ इतने जर्नलिस्ट बैठे हैं, सुन तो लीजिए. तो वो यही होता है ना कि कोई तरदीद आ जाती है ना दूसरे दिन के, भाई हम माफी चाहते हैं, गलत खबर छप गई है, हम आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये खबर गलत थी. ठीक है. एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में है कि आप किसी का मौक़िफ़ पहले ले ले उससे, कि अगर आपको इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको कहा था कि अपना मौक़िफ़ दें, वो नहीं दे रहे. 2, तीसरा उसमें भी एक डिफेंस के अंदर आता है कि हमने जो है ना विद सेम प्रोमिनेंस हमने तरदीद कर दी है. तो वो एक डिफेमेशन का जो लॉ है ना, उसमें रिटन स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्ली होती है कि विद द सेम प्रोमिनेंस वी हैव इशूड द क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, अपॉलॉजी, जो भी है. तो प्रिंट मीडिया का तो ये मयार था जो अभी भी है. सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम आपकी बात सुन ली ना. अगर हम कह रहे हैं ना कि आपका भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं, उनके भी हम अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम अंडरटेकिंग देते हैं कि तनकीद
पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि शायद मुझसे वाकई गलती हो, मैं अगली दफ़ा नहीं करूँगा वो गलती। सर गालियों की बात आ गई, उसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं, झूठे इल्जामात की हम भी मजम्मत करते हैं, मगर आपकी मजम्मत की बात नहीं है, हम आइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो तनकीद है उसकी हमायत करते हैं, जो सेहतमंद तनकीद होती है, और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो खालिस्तन जिन्होंने सिर्फ फैसले को लीगली मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ, उनको भी नोटिस कर दिया गया। मुझे इजाजत है तनकीद करने की। देखिए क़य्यूम साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बास है। सोशल मीडिया पे बोट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। लास्ट टाइम तो ये होता है कि थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते वो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। अरे एक चीज मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे जज जिन्हें मिसकॉन्डक्ट किया तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जर्नलिस्ट के लिए क्या है? सर जहाँ तक जियो टेलीविजन ये सदर साहब से पूछ रहे हैं। डेफेमेशन हो सकती है सर? नहीं, वो तो हर के लिए, कोई जर्नलिस्ट का कोई अपना मैकेनिज्म है इन हाउस जिसको कहते हैं। डेफेमेशन के केसेस कभी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं, वाकयात कोर्ट नहीं करता, लेकिन नहीं कोई है, कोई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर वैसे प्रॉपरली तो कुछ नहीं है, नहीं नहीं उनका देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सुने ना मैं बताता हूँ, वो CPNE का बना हुआ है, काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर सोसाइटी का बना हुआ है, APNS तो खैर वो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, PBA का है, जियो टेलीविजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जियो का तो खुद बनाया गया था, वो इनको पता है तो शुरू में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो है इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जियो का, ठीक है ना। और बाकी आपका पेमरा के अंदर भी काफी डिटेल्ड है जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है, बट सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर दी पेमरा, और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका अपना स्टेट ओन टेलीविजन है, वो पेमरा में भी नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बातें कायदे-ए-आज़म की जरा सुन लेते हैं। कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। नहीं जरा वो देखिए, एक फैसला था ये इनको दें, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये धरना वाला केस। यूट्यूब जितने हैं उनकी एसोसिएशन है या आपके साथ शामिल है? सर हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उस हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करते हैं, उनकी हद तक हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। अगर आपके जो यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं उनकी अगर कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है, अगर वो आपके ही मेंबर हैं, तो आप उसका आप स्कोप बड़ा कीजिए फिर अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में, कि उसमें यूट्यूब, क्योंकि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग एसोसिएशन है ना, बहरहाल है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा ही ना, सोशल मीडिया भी। अगर आपकी कोई मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है या ये सब तैयार हैं तो आपको लेना चाहिए, ताकि इनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और थोड़ा सा आपका भी एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म बन जाए ना। सेल्फ मैकेनिज्म जरूरी है इसमें सर। इस तरह है कि इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी ना किसी हद तक जब अपने इदारों में खबर देते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या लिखते हैं। जो साफी है उसका ताल्लुक ना किसी इदारे से नहीं है, फर्ज कीजिए वो सेल्फ उसका है, फ्रीलांस उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, मगर वो कवरेज करते हैं अच्छी। लेकिन सर जब कोई सहाफी जो है वो यूट्यूब के ऊपर खबर देता है या ट्वीट करता है ना, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल जात की हद तक होती है, उसके ऊपर कोई कानून कोई रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर कोई अखबार में खबर देता है या टीवी में खबर देता है तो उसको 4 दफा पड़ता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, वो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे आप कह रहे हैं वो आपको अखबार में अलाउ करें, वो तो एक अलग पॉलिसी उनकी, हर एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है अपनी। सर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार नहीं है फिलहाल। उसकी ये जरा सा हम कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट आया था 2019 का, ठीक है। इसका पैराग्राफ 34 जरा देख लें, पेज 344 पे है।
ये चीजें पहले भी निशानदेही हो चुकी है इनकी। Freedom of speech, expression, press and PEMRA. 34. The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offense. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। जी, हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offense. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था पैराग्राफ 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord, his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप ये कोटेशन स्टेटमेंट्स, राइटिंग्स, लेटर्स, मोहम्मद हनीफ शाहिद जी जी। 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41 sir. हाँ, अच्छा, ओके। Go to the quotation. नहीं, कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcomed criticism. He said, quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the League goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. Honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things. For instance, मैं आपको 2 चीज बुनियादी बातें बता दूं जो कहीं दुनिया में नहीं होती है सिवाय पाकिस्तान के। वो खवातीन जाती हैं पोलियो ड्रॉप्स देने, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। जरनवाला में आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको पूरी बस्ती को जला दिया जाता है, ठीक है। वो सगुंदा का केस है कि पब्लिक स्कूल वाला केस निकालिए, वो खवातीन अगर तालीम हासिल करने जा रही हैं तो उनको तशद्दुद, स्कूलों पे बम, ठीक है। ये एकदम चीजें नहीं होती हैं, ये चीजें होती हैं जब आप ये सोच आती है। इसके खिलाफ तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं।
अभी मैंने परसों का अखबार पढ़ा या कल का अखबार पढ़ा कि फला किसी जगह फतवा किसी ने दे दिया कि खवातीन वोट नहीं डाल सकती हैं। उन साहब को तो आपने नहीं पकड़ा, वो फ्री स्पीच के ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो आपके कानून उसको को रोका जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स नहीं दो, उनको भी पकड़े। कहीं मुझे कोई दुनिया में बता दें, कोई महज़ब मुआशरा, कोई जाहिल मुआशरे का बता दें, और ये फिर हमें इस्लाम का दर्स देते हैं। और आर्टिकल 19 कहता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम। इनसे बदतर और मनफी सोच हो नहीं सकती है। जरनवाला में आपके सामने हुआ है, क्या हुआ? नफरत, कब्रिस्तानों को नहीं छोड़ते हैं कि कोई भी मजहब दीन उसकी मर्जी है क्या करे, कब्रों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको इन लोगों को किसी न किसी वक्त किसी ने इस्तेमाल किया है और अब ये अशदहे बन गए। और हम लोग छोड़ो तो आगे बढ़ते हैं। अपनी गलती इतराफ करें, आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप गलती भी नहीं इतराफ करेंगे, सजा जजा की बात तो दूर की बात है, गलती तो इतराफ करें, बस इतनी बात तो आगे बढ़ाएं। कोई अखबार में क्यों ये खबर आई कि ये किसी ने फतवा दे दिया औरतों के खिलाफ, उस आदमी को क्यों नहीं जाके उठाया आपने? क्यों नहीं पर्चा दर्ज करवाया कि वो लोगों के इलेक्शन राइट्स को पामाल कर रहा है? जो मर्जी जो आदमी खड़ा होकर तकरीर कर दे, उसको आप फतवा कह भी कैसे सकते हैं? कि इस्लाम के किसी असूल के मुताबिक ये फतवा नहीं है। पता नहीं, तशद्दुद, जुल्म, जबर, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, और ये सब होता है हेट स्पीच से। हेट का क्या उर्दू में? नफरत आमेज तकरीर। My lord, with your permission, my lord, with your permission, बोझ और पता नहीं क्या। my lord, with your permission, जी जी, there was a question raised about regulation of media. I think नहीं, हम नहीं जा रहे हैं उसमें। नहीं सर, एक सेकंड, मैं जरा आपको वादे कर दूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि कोई है आपकी अपनी तंजीम? जी, उसी के बारे में सर, let me explain sir. We do have forums. We have statutory forums, we have self-regulatory forums. फोरम कौन सा है? नाम बताइए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पैमरा है सर। नहीं, पैमरा में तो नहीं उसके है। बाद पैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक। सर, let me explain sir. Media all over the world is self-regulated. जी जी जी, ये तो बात मैंने आपसे And the laws are there, and those laws include defamation laws, contempt of court laws, and all other laws that regulate conduct of जब कोई चीज ना हो तो लंबी बात। आप कोई चीज बताइए ना, हम नोट कर रहे हैं। सर, इस मीडिया के अंदर खुद गवर्नमेंट के भी स्टेक्स हैं। Why would they regulate us? आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, आप अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलेट करना, कैसे आप खुद कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई रेगुलेट करना चाहे, वो आप फरमाइए ना। कोई उसमें आपको किनकी मदद चाहिए? अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट, आपके अपने इदारों की, कि कोई सेल्फ रेगुलेटेड आपका अपना हो, सेल्फ इम्पोज। आपसे पूछ रहे थे, एक सेकंड, आप प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है? किसी ने खबर दी, आज केस डिसमिस हो गया, सब गलत खबर है, अलाउ हो गया, तो आपके पास कोई कंप्लेंट कर सकता है? आपकी कोई कंप्लेंट सेल है कि ये खबर गलत है, या आप खुद उसकी तरदीद कर दें ये खबर गलत है? मैंने आज तक देखा नहीं है, हो सकता है मगर मुझे नहीं पता। अब जहाँ तक डेफेमेशन की बात है, ये आपने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये बात आप जाके करें इंग्लिस्तान में, उसको खौफ जेल का नहीं होता, उसको खौफ होता है कि उस पर जो पेनल्टी लगेगी, डैमेजेस जो लगेंगे, वो उसको तो उड़ा ही देगी। बहुत होता है वो आपको वो तस्दीक ये सच है झूठ है। यहाँ हमारा डिफेमेशन का आप कर दें सूट, 50 साल निकाल लेंगे आप आराम से, अगर आपने इतनी जिंदगी में उसका फैसला भी देख लिया। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, डेफेमेशन है। जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है, मैं कंटेम्प्ट से पढ़ा, वो एक्स चीफ जस्टिस है, उनका डेफेमेशन का केस 14 साल से छोड़ें सर, इसमें मीडिया का कसूर तो नहीं, सर लॉज को इम्प्लीमेंट। अच्छा सर, यही बात हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, हम ये हमारा काम नहीं है कि अब क्योंकि उनकी पिटीशन में ये बात की गई है, हैदर वहीद साहब की, वो चाहते हैं ये, उस पर हम बाद में आएंगे। मगर मैं सिर्फ मालूमात कर रहा था कि कोई ऐसा आपका इदारा है, कोई आपको कोई कंप्लेंट कर सकता है कि जी ये गलत है या नहीं आपके यहाँ? सर, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। नहीं, आपके यहाँ कोई इदारा है? होता क्या है,
सर ये आप प्रैक्टिकली छोड़ दीजिए, कोई आपने दायरा बनाया हुआ है पैमरा है और सर, जिस इदारे की खबर होती है वही इदारा उस खबर की तरतीब करता है। आपके यहाँ प्रेस एसोसिएशन का कोई इदारा है? सहाफती तंजीमें नहीं करती सर। नहीं, इसमें भी थोड़ा फर्क है। आप फर्ज कीजिए किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पे हैं, वो आप वहां बैठ के जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में आता है। आप बाहर आके अपना कोई यूट्यूब का प्रोग्राम करते हो, उसकी कोई एरर हो तो यूर इदारा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो उसके लिए नहीं बोलेंगे, वो इंटरनली आपको वो जिसने गलत दिया सर उसका फर्ज बनता है कि उसकी तरदीद करे, यही तो बात लेकिन वो उस पे माजरत करे, उसका फर्ज बनता है। लेकिन सर एक चीज होती है जो कोर्ट की नोटिस में लाना चाहता हूँ। मसला जनरली जब हम सहाफी बैठते हैं और कहते हैं कि यार फलां शख्स ने फलां खबर गलत दी, खबर डिस्कस होती है, तो उस खबर के ऊपर सर हम उसको जब कोई सहाफी हमें मुलाकात हो जाए या वैसे हो जाए, हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई आपने ये खबर गलत दी है। आप पब्लिकली नहीं करना चाहते हो? नहीं, लेकिन सर पब्लिकली नहीं करना। मैं दूसरे की जो बात मैकेनिज्म की है, वो जो चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछेंगे मैकेनिज्म है कोई इस तरह का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेटेड? वी आर नॉट आस्किंग अबाउट एनी रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो जज उसका मेंबर बन जाए। सर इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। कोई हो एक आपका सेल्फ रेगुलेटिंग जो कोई चीज आप बना सकते हैं। नहीं सर, यही बात थी कि हमें डिफरेंशिएट करना है। जर्नलिस्ट हु इज वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन, और एक शख्स खुद से उठ के यूट्यूब बना लेता है। जो इदारे के लिए काम कर रहा है उसके लिए तो आप 100 जगह काम कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, उसका ब्यूरो चीफ जो होता है, जो यहाँ पर हेड होता है, अफजल साहब, बात को लंबी ना करें, तो हो गई ना वो बात मुख्तसर सी बात है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या हो रहा है, हम आपको बिल्कुल जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहे। हम ये सिर्फ एक सवाल पूछा था, आखिर आप एक सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन एक इदारा है, अगर आपके किसी मेंबर ने गलत खबर चलाई, या दो बातें, या आप खुद उसकी वो कर दें कि ये गलत खबर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ कोई अगर दरख्वास्त दे दे कि ये तो आपने जो खबर दी थी गलत है, तो सिर्फ पूछ रहे हैं आपके यहाँ कोई ऐसा आपने पूरा एसोसिएशन या उसकी कोई कमेटी बनाई हुई है अपने तौर पे इस बात को देखने के लिए या नहीं? सर अभी तक नहीं है। बस 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 कुछ और नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आप करना चाहें या ना करना चाहें ये भी हम नहीं कहेंगे आपको, शायद बेहतर होगी। मैं आप जैसे मशवरा ही समझ रहे। सर ऑनरेबल जज ने एक बात और की यूट्यूबर्स के हवाले से कि हम उनको शामिल करें। 2 दफा हमारे मेंबर्स नहीं है ना, वो क्या करेंगे? आप करना चाहे देखें, वो तो आपको अपना आर्टिकल मेमोरेंडम को एक्सटेंड करना होता है ना, आपके अपने बायलॉज है, उसमें आप वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं, वो कहेंगे क्या कर लें, आप करना चाहिए। यही बात है सर। 2 दफा हमारी जनरल बॉडी में ये मामला गया है, हम सिर्फ आपके मेंबरान किया जाए। लेकिन सर वो जनरल बॉडी में यही बात आती है कि किसी यूट्यूबर्स को हम किस तरह फोर्स करेंगे। बिल्कुल आपसे आपका जिम्मेदारी नहीं, हम कब कह रहे हैं, आप क्यों अपने सर पे बात की थी? मैंने तो अपनी बात पे कायम हुए, आपको बढ़ाना चाहिए अपना स्कोप जो है। सर वो 2 दफा रिजेक्ट हो गया। ऐसा है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया, उनका जरिया माश बन गया है कि वो दूसरों को गाली दें यूट्यूब खोल के और उससे पैसा कमाएं। वो मुल्क की इज्जत के साथ क्या होता है उनको कोई परवाह नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत तकलीफ देती है इंसान को, खासतौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत महसूस होती है। ये जरा इनको दे जजमेंट शहजाद शौकत साहब को, PLD 2022 SCMR 189। May I read, my lord? ये आप जरा पैराग्राफ 11 पढ़ने इसका। There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan. जरा ये आप माइक पे करें। और There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan between 1970 and 2019, recorded by the Global Terrorism Database. The highest number of attacks on educational institutions in the world. रुक जाइए यहाँ, दोबारा इसको पढ़िए। The highest number of attacks on educational institutions in the world. In the world. आगे पढ़ते हैं। Unfortunately, neither the National Counter-Terrorism Authority (NACTA), the Ministry of Interior, nor the Ministry of Defense of the government or any other official website maintains such a database. A state protects and supports its citizens. It is a testimony to the courage and determination of the teachers and children who attend schools in such dire circumstances. However, the horrendous number of terrorist attacks and the death and destruction left in their wake require
requires that the state ensures the guaranteed fundamental right to life and education. What lesson is really being taught to the girls studying in public schools Sangota and to the hundreds of millions of others who are or should be in school? Is it that their constitutionally guaranteed fundamental right to life and to education is, after all, meaningless? अब ये शर्म की बात नहीं है, किसी सहाफ़ी ने, अब बुरा ना माने, आप कहते हैं तनकीद, हम भी थोड़ी तनकीद कर लेते हैं आप पे, इस बात को उजागर किया, मेरी तरफ से बुरा मान ले। आपने इस बात को उजागर किया है। मैंने ये रिपोर्ट भी हुई अब ये जरा पढ़ें और ये इसके जब जजमेंट आई थी, आपकी जात की बात नहीं, हमने रिपोर्ट भी किया था। जरा देखिए, अब हमें मुल्क का भी देखना है चीजें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उसको आप इस तरह से भी इस्तेमाल होती है और लोगों को मारा भी जाता है, और शर्म की बात यह है कि नोबेल प्राइज क्या है वो जिनको नोबेल प्राइज मिला है पाकिस्तान से, वो मतलब जिंदा कैसे हैं, वो भी एक मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो पाकिस्तान नहीं आ सकती है। क्या कितनी फख्र की बात है, मतलब, और हम में इतनी जुर्रत भी नहीं है कि बात करें इस बात की, क्योंकि उनके पास बंदूक हैं, हमारे पास कलम है, वो उससे ज्यादा ताकतवर है। दिखा के दिखाइए ना, ये फर्क कब आएगा? ये एक चीज तो नहीं है, ये चलती रहती बात को। अब आप जरा ये पैराग्राफ 10 इसका पढ़ दीजिए, वो कहते हैं तालीम मत दो बच्चियों को। अब उन्होंने ग्लोरी ऑफ इस्लाम को वायलेट किया है, आर्टिकल 19 का। जरा ये कोई पढ़ाता कोई क्यों नहीं है? सरकार क्यों नहीं ये कहती है कि हर जो इनके कम से कम सरकारी जो वो हैं मसाजिद, उनमें तो तनख्वाह पा रहे हैं ना जो इमाम, वो ये इस बात का दर्ज क्यों नहीं देते हैं? वो खैर आजाद को ही उसको तो नहीं कह सकते हैं, मगर सरकारी को तो कह सकते हैं। अगर हमारी सोच ही ऐसी हो गई है ना, अब जरा पैराग्राफ 10 पढ़ लेते हैं। The first command from Almighty Allah to the Prophet Muhammad, peace be and blessing be upon him, and through him to the humanity, was Iqra, read. Iqra is a command. It is expressed in the command from the Arabic verb. The first command proceeds to then mention the pen, kalam, and the education of learning ilm. On the myriad of the things that the most benevolent Creator could have conveyed in the first revelation in the Holy Quran, He, in His infinite wisdom and mercy, considered reading, writing, and education to be of the primary importance. Prophet Muhammad, peace be upon him, has also placed great emphasis on education. He enabled the non-Muslim prisoners taken after the Battle of Badr to secure their freedom if they taught the illiterate amongst the Muslims to read and write. This was probably the first ever use of a community service order used in some countries, which is the successor of a probation order. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, had also said to the men and women of the Islamic community to go as far as China, a non-Muslim country, to seek knowledge. Islam's emphasis on education and learning distinguished it from the prevailing civilizations, where education and learning was restricted either to a particular class or to a section of a society. Islam was inclusive and non-discriminatory. The most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most righteous. Race, color, status, wealth, and gender were submerged under the Islamic equality principle. Ironically, education has come under attack in the Islamic Republic of Pakistan, despite the constitution guaranteeing equality of sexes, which compels the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16. ये एक हमारी बेंच है, लार्जर बेंच है, तो उसके बाद फिर हम कन्वीन करेंगे। कोई वक्त नहीं दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी लार्जर बेंच कब ख़त्म होती है, क्योंकि अभी हमने बोर्ड नहीं शुरू किया है, मगर क्योंकि ये काफ़ी अहम मामला है, बहुत अरसे से चला नहीं था। तो शौकत, अगर आप लोग मुश्तरका तौर पे या इंडिविजुअली अगर हमें कुछ बता सकें कि हम क्या आज किस किस्म का हुक्म जारी करें, बिलखुसूस आप जरा इसमें न्यूट्रल हैं। एटलीस्ट जर्नलिस्ट जो हैं उनके नोटिस तो उनको अभी ये वापस करे, FIA हरासा ना करे, नहीं, वो मैंने इनसे अंडरटेकिंग लेंगे
coercive action वगैरह कि आप लोग मुश्तरका तौर पे अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि किस किस्म का हुक्म आज हम जारी कर सकते हैं तो हम आके सुनेंगे. वक्त का पता नहीं, वो लार्जर बेंच टेक्स प्रायोरिटी. अच्छा नहीं, मेक श्योर आप टेलीफोनिकली या माय कोलीग इज सेइंग कि इसको कल पे रख लें. आपको कोई इतराज है? नहीं, कोई इतराज नहीं. आज हम ये लिख देते हैं, ये आज नो वन विल बी, आज का लिखें, इसमें लिख ही लेते हैं छोटा सा ऑर्डर. अब मैं देखें, कानूनी कार्रवाई अगर कोई बुला रहा है आपको, पता नहीं चाय पिलाने बुला रहा है किस लिए, बट आप किसी को पर्चा नहीं दर्ज करवाएंगे, पहली बात अरेस्ट नहीं कराएंगे अगर उसे तनकीद सिर्फ की है. ठीक है, आप कुछ और कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या चीजें, हमें तो नहीं पता है, मगर ये बात बिलखसूस जर्नलिस्ट, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच लिखा है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, तो 2 दफा आता है आर्टिकल 19 में, तो उसकी जरा अहमियत बढ़ जाती है. no one any amount of criticism or can be criticism. ठीक है अटॉर्नी जनरल साहब, ये जरा लॉ भी नोट कर लीजिए. आपको हार्शेस्ट पॉसिबल क्रिटिसिज्म, वो भी मैं इधर भी चले जाते हैं, मगर लॉ लिख लीजिए. प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021, ये भी एक लॉ है. इसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनना था, तो उसको भी आप देख लीजिए, जिसके अंदर ये हरासमेंट, इंटिमिडेशन और ये इस तरह की चीजें अगेंस्ट द जर्नलिज्म जो है, उसके लिए कमीशन बनना था. वो आपका इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया है, तो उनके कौन मेंबर्स हैं, क्या काम किया है अभी तक, कोई उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई कमीशन है, तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है ना, पर्सनल टू दिस लॉ, तो ये भी जरा बता दीजिएगा. ठीक है सर, वो जर्नलिस्ट ये कल पे करने पे, बाकी बात तो कल ये कब बुलाए वैसे? आज भी है, सब जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद वो कहेंगे पेश नहीं हुए, फिर गिरफ्तारियां और अरेस्ट करने शुरू कर देंगे. We made it clear any amount of criticism is no offense. In fact, it is a fundamental right of every citizen and in journalists in particular. Criticism. तो गिरफ्तार न किया जाए, इंटिमिडेट न किया जाए. ये कह रही है ना, इन्हें अंडरटेकिंग देंगे. अब अंडरटेकिंग के कुछ और असर होते हैं ऑर्डर से ज्यादा, ये शायद समझते हैं अटॉर्नी जनरल. एंड दिस अंडरटेकिंग विल बी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. सो यू विल नॉट से वन आईजी, इट्स अ होल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान bound by this undertaking. Because is it convenient for you to come tomorrow? I have to go back today. If my lords can take it up on 1st, I'll be here. ये जरा आज क्या तारीख है? आज 29 है जी, 2 दिन की. कल क्या दिन है? निकालिए, ले लेते हैं. कल कोई केस है तो नहीं? तो निकल आप सर चलें, आप video link, my lord. चलें, ठीक है. It's okay. So it goes to tomorrow. That is fine. तो इसमें लिख लेते हैं, बल्कि आज का ऑर्डर लिख ही लें. इसमें लिखिए, this a complaint was filed by five journalists, including the then president of the Supreme Court Press Association. Supreme Court Press Association, Press Association of Supreme Court. Press Association of Supreme Court. Including by the Press Association of the Supreme Court before this court, which was numbered as Suo Motu case number 4 of 2021. Full stop. The said matter was not listed for hearing. For considerable time. Full stop. The Press Association, full stop. Mr. Amjad Nazir Bhatti was then the president of the Press Association, PSCA Karne, and we are informed that now it is Mia Aqil Afzal. We inquired from the president
of the association whether he wants to pursue the matter, and he said he does. Full stop. An ex-president of the association, Mr. 𝐋𝐈𝐕𝐄 Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue the matter. Messrs. Imran Shafkat and Amir Mir, two other signatories, are not in attendance, and the fifth complainant, Mr. Asad Tur, states that that he is not that he is not interested to pursue the complaint. We inquired from him whether what he had alleged regarding attack on him was correct, and he stated that it was, but the same has not been properly investigated. Full stop. The complainants before us have stated that a number of attacks took place on journalists which were not properly investigated, including those on Mr. Asad Ali Tur, Asad Ali Tur hai, Asad Tur hai. Asad Ali Tur, Messrs. Matiullah Jan, Imran Shafkat, Amir Mir, AMIR, Amir Mir, और कौन था? Full stop. The Attorney General is in attendance and is directed to file a separate comprehensive report with regard to each of the said journalists and what and where the what happened with the investigation and whether any charges were framed against anyone. He is it is alleged that those who carried some of these attacks were members of an intelligence agency under the control and command of the federal government. Full stop. The investigation officer, in case access has not been given to them, the investigation officer shall ensure that it is immediately granted and is not hampered in any way in conducting the investigation. Full stop. The president of the association and that of Islamabad High Court Journalists Association and Mr. Fayaz Mahmood, नाम लिखने ये association का, have brought on record a resolution passed by the association yesterday, on 27 January 2024, stating that the Federal Investigation Agency has issued notices to journalists, full stop, and they apprehend that they will be arrested if they attend to such notices, full stop. The notices were issued, have been issued on the purportedly since the judiciary was being maligned. Full stop. We have made it clear to the learned Attorney General that criticism of a judgment or an order, fair criticism of any is not only the right of journalists but also of every citizen of Pakistan, and no action, no criminal case or action be initiated if the matter is on the criticism of a judgment or order. Correct? Right. The restriction imposed. As stipulated in Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Attorney General states that the
that the state undertakes on behalf of the federal government. You are authorized that no such action will be taken if it is simply criticism of a judgment or order is taken. Is this what you're undertaking? Yes, to this extent. Okay. अच्छा, Mr. ये आपका इशू अटेंड हो गया है? Special Lordship, may I request they have the concern of the journalist. Today notice may kindly be suspended, which was fixed for 11 today. भाई ये देखें, अब हम देखें, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ हमेशा से, कोई नई बात नहीं है, हर इदारे को अपना काम करने दें। अब बिला वजह हमने ये वजाहत कर दी ना, अब वो पता नहीं कोई और इंक्वायरी चल रही हो, मर्डर इंक्वायरी चल रही है, मुझे नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। सर इसी की इंक्वायरी में हमें नहीं, देखिए ना, या तो आप हमारे पास कुछ लाइए, अब तो बगैर लाए हमने ये ऑर्डर कर दिया ना, आप कोई कंप्लेंट नहीं लाए। अब वो अगर आप किसी जगह चले जाए, कोई आपको कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं वो क्यों बुलाया है, आई डोंट नो। वो ना हमारे पास कोई नोटिस है ना कुछ है, कुछ चीज फाइल भी आपने नहीं की ना, इसके बावजूद हमने ये ऑर्डर कर दिया। थैंक यू सर। आप ये लिख दें, नो अरेस्ट और एनी अदर कोर्सिव एक्शन। ठीक है, ठीक है, अपीयर तो हो सकता है, कोई कोर्सिव एक्शन को अरेस्ट मुझे नहीं। अब जो बेंचमार्क है कि अगर क्रिटिसिज्म इज ऑफ द जजमेंट, decision or order of the court, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order, no further proceedings. जब तक GIT बात तो खत्म करने दें। But if it and I say so because the balance between Article 14 and 19 has to be maintained. नहीं, देखिए ना, अभी आज की पहली तारीख है, एक सेकंड होगा, अब इसके बाद मजीद ऑर्डर हो सकते हैं ना, आप लोग कुछ फाइल करेंगे तो हम कम से कम नजर तो आए ना क्या चीज हम रोकें। नेक्स्ट डेट तक तो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट डेट तक तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि जो FIA कोई डिटेल्स दे दे कि वो किस चीज के ऊपर कर रहा है, उसके बाद जब आप जाएंगे तो वो बता देंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों बुलाया गया, यही बताएंगे सर। अगर देखिए, आप जरा सुन लीजिए, कल अगर कोई थानेदार चीफ जस्टिस को बुलाए तो सुन लीजिए ना, मुझे भी जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। वो पाकिस्तान पीनल कोड में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो सकता है मेरे समसाय में कोई मर्डर हो गया हो, तो मुझसे शायद पूछना हो, वो मेरे खिलाफ नहीं होगा, वो शायद आपको एज ए विटनेस बुला रहे हो। सर अब थोड़ा सा फर्क ये है, कुछ लोगों को आज बुलाया गया है, कुछ को कल, कुछ को सर यकम को, तो सर आप ये चीज आप तसल्ली रखें ना, हम बैठे हुए ना, फिक्र ना करें। अब आप फिक्र ना करें ना, मुझे हम लोग मफरूजों पे जा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, बिला वजह तंग करने के लिए बुला रहे, हो सकता है कुछ और वजह से बुला रहे, हमें नहीं पता है ना। ये जैसे मैंने कहा, कल को मुझे भी नोटिस आ सकता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। कौन से न्यूज आइटम पे आपको बुलाया है, वो तो जब आप पेश होंगे तो बताएंगे कि आपसे गिला क्या उनको। नहीं, शायद बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद हैं, और फिर वो FIA आपको पता है कि वो कहेंगे आप पेश नहीं हुए, और वो वारंट जारी करके और अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको आप अगर हम देखें 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दें ये नोटिस। सर अब देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें जर्नलिस्ट कौन है, कोई आपने दरखास्त दी है, हवा में हम सब चीजें कर रहे हैं। आप एक कम से कम अब आपके पास वक्त तो था, आज ले आते, कोई दरखास्त तो दे देते ना। कयूम सिद्दीकी साहब, जब आपने इतना काम किया था और भी कर देते। सर मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कल तक के लिए, जब तक कि हम ये फाइल करते हैं, उस वक्त तक के लिए FIA को फेडरल गवर्नमेंट रोके कि वो किसी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाएगी, ना अरेस्ट करेगी। तो कल तक अच्छा, ये मुझे बताया जा रहा है DIG FIA मौजूद है इधर, DG FIA। तो पता है क्यों बुलाया गया जर्नलिस्ट को? कौन से सेक्शन के तहत नोटिस दिया आपने इनको? जर्नलिस्ट को क्यों बुलाया ये बता दें। ये क्रिटिसिज्म के मुतालिक है, कोई और क्राइम के मुतालिक है?
سر اس میں مختلف ہیں, کرٹیسزم کے متعلق بھی ہیں سر, اور صرف جرنلسٹ نہیں ہے اس میں تو نہیں دوسروں کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں, ان کا جرنلسٹ کرٹیسائز کریں. اب مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے آپ اچھا ایسا کریں کل تک یہ جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو آپ اٹارنی جنرل نوٹس کی کاپی بھائی ایک دن اگر ہو جائے تو کیا ہو گیا. My lords are minded to say so, but what I can your undertaking. Ji, what I am undertaking is that آپ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھا جائے, سمجھ گئے نا فیڈرل گورنمنٹ سے have a meeting with I think what you should do. I will communicate. They may have some certain concerns. سر جے ٹی کس قانون کے تحت بنائی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ صاحب ایک سیکنڈ, آپ ایسا کریں, have a meeting today with whatever the concerned person is, call the president of the association as well. جو legitimate concern ہے, as far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. So just sometimes you have to tell people who are not lawyers, I mean, policemen have a different attitude towards things. So ذرا سے ان کو سمجھا دیجیے, ان کو بھی تسلی ہو جائے. تو یہ ہم نے آپ کے آپ اس کو action of any sort. اچھا تو یہ ہو گیا. اور کیا بات تھی؟ اب کل جو ہے اس کو لکھ کے لانا تو یہ پھر کل پہ کریں. کل کچھ مستقبل کچھ ہے کل, تو کل پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں. اگر آپ کچھ فائل کرنا چاہیں تو کر دیجئے تو اچھی بات ہوگی. اتنی جلدی فائل تو نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہی ہوتا ہے. رپورٹ آپ کو تو ٹائم لگے گا نا جی, اس پہ 2 دن دے دیں. نہیں وہ وی ول گیو یو ٹائم. اب اتنے سال گزر گئے تو آپ کو ہم 2 دن کیا, ہم آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے. وہ رپورٹ دیکھیے, اگر انویسٹیگیشن یو وانٹ اٹ تھرلی ڈن, دیٹ انویسٹیگیشن کین ناٹ بی ڈن ان 2 days, otherwise it will be no investigation. So we'll give you ample time. مطلب you want a fortnight, a month, whatever it is, ہم آپ کو دیں گے. تو کتنا My lord, 2 weeks is I believe sufficient. وہ رپورٹ والے کرنے 2 ہفتے وہ جو وہ ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے اصل ایشو کو کل سائڈ کرنے کے لیے جرنلسٹوں کو سامنے اس کے ساتھ ڈال کے نتی کر کے تو معاملہ ہی گول مول ہو جائے بس. اسی لیے آپ ایسا کریں نا, ان سے ایک میٹنگ کر لیں, کیونکہ یہ جو ان کی بات سمجھ مجھے آئی ہے کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے دوسرے کو پروٹیکشن نہ دیں. یہ آپ کہہ رہے ہو یا وائس ورسا, آئی ڈونٹ نو. تو ان کو سامنے کر دیا جرنلسٹ کو, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ ذرا اپنے آفس میں ان لوگوں کو بلا کر کے یہ ایشوز دیکھ لیجیے. تو اور پھر کل پہ ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. باقی بورڈ جب فل بینچ ہو جائے گی ویل ریکنوین. اوکے. To be at Bihar, the story that's been developing, the political story that's been developing in the state.